So let us start with next question. Question number 18th. A motorcyclist as a particle. तो मैंने आपको कल ही बताया था कि सर्कुलर मोशन में we normally take motion of any object as a particle, as a point mass हम consider करते हैं उसको, is undergoing vertical circles inside a sphere of depth. The speed of motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. Calculate diameter of sphere of depth. How much minimum values are possible for these two speeds? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए what is sphere of depth. If you remember, हमने circular motion में we have seen well of death. Well of death, wall of death, मौत का कुआं, that is a different thing. उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास होता है vertical cylinder. तो you have vertical cylinder in which a vehicle is performing horizontal circular motion. You have a vertical cylinder in which the vehicle performs horizontal circular motion. तो आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, vehicle which is performing horizontal circular motion, and it was something like this. इसको हमने बोला था well of death या फिर wall of death. Already we have solved question on this. तो आपको forces already पता होंगे, तो you know what are the forces acting here. तो इस केस में forces कौन कौन से है? You have mg downwards, fs frictional force upwards, normal reaction, right? लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है उसमें it is not well of death. उन्होंने बोला है sphere of death. Sphere of death is a different thing. तो sphere of death में क्या होता है? You have a sphere. इसमें जो vehicle होगा it performs vertical circular motion instead of horizontal circular motion. तो what you have in this case is vertical circular motion. तो you have a sphere. इसके अंदर एक गाड़ी है, तो ये भी आपने देखा होगा शायद. तो you have a vehicle here which performs vertical circles. So the vehicle will go something like this. So you should know sphere of death और well of death ये दोनों अलग अलग cases है. In this case the motion is vertical circular motion, and in case of, I am repeating again, in case of well of death it is horizontal circular motion. तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, these are two different cases. The moment you say vertical circular motion, तो आपको ये पता होगा ही, ये जो टॉप पोजीशन है इसको हमने A बोला था, ये लोवेस्ट को हमने B बोला था, और अगर आपको याद होगा तो टॉप पोजीशन पे मिनिमम स्पीड हो सकता है अंडर रूट ऑफ RG. इससे ज्यादा चलेगा, इससे कम नहीं चलेगा, बिकॉज इससे कम अगर हुआ तो व्हीकल विल फॉल डाउन. और यहाँ पे VB is under root of 5RG. तो the maximum speed, the maximum possible speed at lowest position is under root of 5RG. क्लियर यहाँ तक? तो स्पीयर ऑफ डेथ में व्हीकल परफॉर्म्स वर्टिकल सर्कुलर मोशन, वेल ऑफ डेथ में व्हीकल परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन. देन if you read the question properly, a motorcyclist, तो ये जो मैंने रेड बताया, this is a motorcyclist. तो motorcyclist is performing vertical circular motions here. Speed of the motorcycle varies between 6 meter per second and 10 meter per second. तो मैंने आपको अभी यहाँ पे भी बता दिया, हमेशा याद रखो जो लोअर स्पीड होता है वो हमेशा टॉप पे होता है. तो V टॉप कितना बोला है? 6 मीटर पर सेकेंड, राइट? इसी को आप बोल सकते हो of course under root of RG. Then बॉटम पे स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकेंड. इसको आप बोल सकते हो अंडर रूट ऑफ 5RG. गुड. कैलकुलेट डायामीटर ऑफ द स्पीयर ऑफ डेथ. डायामीटर मतलब ट्वाइस द रेडियस. डायामीटर मतलब डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, A से B पॉइंट तक का डिस्टेंस. और आपको ऑलरेडी पता है सेंटर से A पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है R, और ये भी होता है R. तो टोटल डिस्टेंस इज 2R, मतलब डायमीटर इज 2R. तो आपको फाइंड करना है डायमीटर. यू आर सपोज टू फाइंड आउट डायमीटर विच इज इक्वल टू 2R.
तो रेडियस मिल जाएगा तो डायमीटर मिलेगा। क्लियर? देन इफ यू रीड फर्दर, आगे बोला है हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर दीज टू स्पीड्स। एक्चुअली उन्होंने बोलना चाहिए था हाउ मच मिनिमम एंड मैक्सिमम। मतलब बेसिकली दे आर आस्किंग यू what is Vmax and Vmean? What is Vmax? Under root of 5rg. What is Vmean? Under root of rg. तो पहले r फाइंड करो, वो r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो कहाँ पे? इन दोनों में। तो यू शुड नो कि टॉप मोस्ट पोजिशन पे वैल्यू होती है मिनिमम और बॉटम पे होता है मैक्सिमम, राइट? तो यहाँ पे बोलना चाहिए था हाउ मच मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज, तो वहां पे से मिनिमम बोला है, वो करेक्शन कर लेना। देन यहां तक अगर क्लियर हुआ तो आगे सॉल्व करते आएगा। मैं वापस एक बार बता देता हूं, यू हैव अ स्पीयर ऑफ डेथ। स्पीयर ऑफ डेथ एंड वेल ऑफ डेथ में एक बेसिक डिफरेंस है। वेल ऑफ डेथ में व्हीकल परफॉर्म्स हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, उस केस में mg को फ्रिक्शनल फोर्स बैलेंस करता है, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो केस है ये है स्पीयर ऑफ डेथ। स्पीयर ऑफ डेथ मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन, और वर्टिकल सर्कुलर मोशन चाहे वो व्हीकल का हो या फिर एक रस्सी पे एक बॉल बांध के रखा है, आप उसको वर्टिकल सर्कल्स में सेट कर रहे हो, या फिर एनी अदर केस ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऑलवेज रिमेंबर इन दिस केस टॉप मोस्ट पोजीशन पे यू विल हैव वेलोसिटी एज अंडर रूट ऑफ rg एंड सबसे नीचे बॉटम पे अंडर रूट ऑफ 5rg। गुड। देन हमें फाइंड करना था डायामीटर, बट डायामीटर है ट्वाइस रेडियस। तो अभी आपको सोचना पड़ेगा कि r कैसे मिलेगा। आपके पास दो वैल्यूज है, दो इक्वेशन है, एक टॉप पे एक बॉटम पे। अगर मैं इसको स्क्वायर एंड ऐड कर देता हूं, तो इफ यू स्क्वायर एंड ऐड, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, राइट? तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, देखो स्क्वायर एंड ऐड भी कर सकते हो, आप सबट्रैक्ट भी कर सकते हो, बी केयरफुल। तो स्क्वायर एंड ऐड करो या सबट्रैक्ट करो, मैं आपको सबट्रैक्ट करके बता देता हूं। स्क्वायरिंग एंड सबट्रैक्टिंग, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2। 1 फ्रॉम 2 क्यों कर रहा हूं? बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू कम है और 2 में ज्यादा है। तो स्क्वायर करने के बाद अगर आपने 2 में से 1 को सबट्रैक्ट कर दिया तो नेगेटिव नंबर आएगा। तो दैट इज वाई सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, मतलब v बॉटम स्क्वायर माइनस v टॉप स्क्वायर। व्हाट वाज v बॉटम? अंडर रूट ऑफ 5rg, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5rg। व्हाट इज v टॉप? अंडर रूट ऑफ rg, उसका स्क्वायर माइनस rg, राइट? तो ये आ जाएगा माइनस rg, 5rg माइनस rg। तो यहां से आपको मिल जाएगा v बॉटम स्क्वायर माइनस v टॉप स्क्वायर इक्वल टू 4rg। उसमें से 4g डिवाइड कर दिया, ये आ गया r। तो आपको यहां से मिल जाएगा रेडियस। हमें चाहिए था डायामीटर, तो हमने बना लिया रेडियस का फॉर्मूला। तो r इक्वल टू, व्हाट इज v बॉटम? 10, 10 का स्क्वायर 100, तो यह आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 10। 10 लेके देखते हैं पहले, तो यू विल हैव 100 माइनस 36 विच इज 64, और ये 4 इंटू 10, 1 जा एंड 16 जा, तो दिस इज 1.6 मीटर। तो डायामीटर विल बी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस विच इज 2 इंटू 1.6 विच इज इक्वल टू 3.2 मीटर, सॉरी ओनली मीटर, डायामीटर है तो मीटर। तो हो गया आपका पहला पार्ट सॉल्व। तो हमेशा याद रखना, नॉट एवरी टाइम जो हमने थ्योरी में सीखा है उसी पे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि स्पीयर ऑफ डेथ आपके करिकुलम में थ्योरी में नहीं है। बट देन यू शुड नो कि स्पीयर ऑफ डेथ होता क्या है, एंड यू शुड नो कि टॉप पे स्पीड होता है अंडर रूट ऑफ rg, बॉटम पे होता है अंडर रूट ऑफ 5rg। तो बॉटम और टॉप का फॉर्मूला बन गया, स्क्वायर करके सबट्रैक्ट कर दिया, एंड व्हेन यू डू दिस आपके पास r का फॉर्मूला बनेगा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फाइंड आउट r मिल गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा आपको डायामीटर। यहां तक हो गया। अब आगे क्या बोला था? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो आपको फाइंड करने के लिए आगे ये भी बोला है व्हाट इज v मिनिमम एंड व्हाट इज v मैक्सिमम। तो यू शुड नो व्हाट इज v मिनिमम एंड v मैक्सिमम, राइट? फॉर्मूलाज यू ऑलरेडी हैव, v मिनिमम और v मैक्सिमम का फॉर्मूला आपके पास ऑलरेडी है।
व्हाट फॉर्मूला यू हैव इज, क्या था वी मिनिमम का फॉर्मूला? अंडर रूट ऑफ आर जी, अंडर रूट ऑफ आर, आर कितना आया 1.6, जी कितना है 10, तो अंडर रूट ऑफ 16 मतलब कितना 4, तो ये आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। देखो मैंने पहले ही बताया था कि टॉप मोस्ट पोजिशन पे अंडर रूट ऑफ आर जी मतलब मिनिमम स्पीड, इससे कम नहीं हो सकता, इससे ज्यादा चलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कितना है 6 विच इज ग्रेटर देन 4, तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो सकता है। अगर 3 कर दिया तो द व्हीकल विल डायरेक्टली फॉल डाउन। सिमिलरली बॉटम पे मैक्सिमम कितना हो सकता है? वी मैक्स इज अंडर रूट ऑफ 5 आर जी। अब ये अंडर रूट ऑफ आर जी तो फाइंड किया ना आपने, क्या है ये 16, राइट? तो 16 का रूट कितना 4, तो ये कितना आ गया 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड, राइट? डन, दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। All right, so last question from circular motion, and ये थोड़ा लेंदी है तो it will take some time but you need to pay attention. तो example 1.6 solved example में से है ये। तो what they are giving you is a tiny stone of mass 20 gram is tied to a practically massless inextensible flexible string and whirled along vertical circles। तो ये केस आ गया वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, राइट? आगे बोला है स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड when the centripetal force is exactly equal to force due to surface tension। अब पहले ये जो पहला पैराग्राफ है इसका मतलब क्या? स्पेशली स्पीड ऑफ द स्टोन इज 8 मीटर पर सेकेंड, लेकिन कब? when centripetal force is exactly equal to tension, force of tension। तो इसका मतलब what they are trying to tell you is you should remember vertical circular motion, ये पता होना चाहिए। and obviously आपको ये भी पता होना चाहिए कि what we do in this case is हमने एक स्ट्रिंग लिया, उसको एक पॉइंट पे हाथ में रखा है एंड देन वी आर मेकिंग इट गो इनटू वर्टिकल सर्कल्स, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग। देन व्हाट हैपेंस इज एट द टॉप मोस्ट पोजीशन, अगर आपको याद होगा ए पॉइंट पे सबसे ऊपर फोर्सेस का डायरेक्शन क्या था? आपके पास कौन से दो फोर्सेस थे? एक था mg, वेट mg, ये कहाँ था? वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो यू हैड वेट mg विच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड तो ये आ गया mg। और अगर आपको याद होगा तो सरफेस टेंशन, सॉरी सरफेस टेंशन नहीं, टेंशन, टेंशन फोर्स कहाँ था? वो भी था डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स मतलब कहाँ पे? टुवर्ड्स सेंटर ओ। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग वाज आल्सो डाउन। तो इन दिस केस सेंट्रीपिटल फोर्स किसने दिया? टेंशन प्लस mg ने, राइट? अगर आप बी की बात करोगे तो लोएस्ट पोजीशन पे mg ये है वर्टिकली डाउनवर्ड्स और टेंशन था ऊपर की तरफ टुवर्ड्स सेंटर टीबी। तो अगर बी पॉइंट की बात करोगे तो टीबी माइनस mg वाज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर यहां तक? क्वेश्चन में बोला है स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, कब? जब जब सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू फोर्स ऑफ टेंशन। तो ए पे भी नहीं हो सकता और बी पे भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ए पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज बिकॉज ऑफ टी ए प्लस mg और यहाँ पे बी पे सेंट्रीपिटल फोर्स इज बिकॉज ऑफ टेंशन माइनस mg। तो दोनों पे नहीं हो सकता, तो कहाँ होगा? ढूंढो। अगर मैं मिड पॉइंट लेता हूं सी, स्ट्रिंग इज हियर, मतलब टेंशन फोर्स इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेंटर and that is the only force which is pointing towards the center। क्योंकि mg तो सेंटर की तरफ नहीं है ना ही सेंटर की तरफ है ना ही सेंटर से अपोजिट है। a पॉइंट पे mg था टुवर्ड्स सेंटर, b पॉइंट पे था अपोजिट टू दैट ऑफ सेंटर, लेकिन c पॉइंट पे ना वो टुवर्ड्स सेंटर है ना वो अपोजिट है, वो है कहाँ पे? वो नीचे है। तो एट मिड पॉइंट, मतलब मिड पॉइंट पे
C हो या फिर यहाँ पे D हो, ओनली एट मिड पॉइंट सेंट्रीपिटल फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू टेंशन, राइट। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए गिवन डेटा में दिया क्या है, उसको पहले आइडेंटिफाई करो। तो V इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड एट मिड पॉइंट C, क्योंकि कौन सा पॉइंट है, कहां पे है, वो आइडेंटिफाई करना सबसे जरूरी है। तो यू हैव स्पीड इक्वल टू 8 मीटर पर सेकेंड, कहां पे, मिड पॉइंट पे, ना हाईएस्ट पे ना लोवेस्ट पे। देन इसके आगे क्या बोला है, कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग द एंटायर सर्कल। तो फाइंड करने के लिए आपको बोला है मिनिमम एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नंबर 1 मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसके आगे क्या बोला है, लेट थीटा इक्वल टू 0 बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन द स्टोन इज एट द लोवेस्ट पोजीशन। मतलब बोलने का मतलब क्या, अगर आपको मैथ्स पता है तो मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में आप नॉर्मली एंगल कहां से मेजर करते हो, आप जीरो, मतलब जीरो किसको बोलते हो, एक्स एक्सिस को बोलते हो। कौन से एक्स एक्सिस को, पॉजिटिव। मतलब आप एंगल हमेशा मेजर करोगे विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाओगे तो एंगल नेगेटिव, राइट। बट यहां पे बोला क्या है, यहां पे आपको बोला है, वापस एक बार पढ़ो, लेट थीटा बी द एंगुलर पोजीशन ऑफ द स्ट्रिंग, थीटा इक्वल टू 0 बी द एंगुलर पोजीशन व्हेन द स्टोन इज एट लोवेस्ट पोजीशन। तो स्टोन जब लोवेस्ट पोजीशन पे था, यहां पे था, हियर, राइट। तो एंगल कितना, 0। अब अगर स्टोन मूव हो रहा है तो एंगल कहां से मेजर कर रहे हैं हम लोग, 0 से। 0 मतलब वाई एक्सिस से। कौन से वाई एक्सिस से, नेगेटिव वाई से। तो आपको सिर्फ बताया इतना है दैट एंगल विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर नहीं करना है, एंगल मेजर करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। कौन सा वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। क्यों, क्योंकि क्या बोला है, स्टोन इज एट लोवेस्ट पोजीशन। अगर बोला होता अपर मोस्ट पोजीशन तो उस केस में हम एंगल कहां से मेजर करते, यहां से मेजर करते, कहां से, ए से, विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। इसके आगे, डिटरमाइन द एंगुलर पोजीशन of the string when the force due to tension is numerically equal to weight of the stone। मतलब the idea is determine angular position, मतलब find करो what is theta। कब, when force of tension is numerically equal to weight, मतलब when T is equal to mg। यहां तक क्लियर। तो इतना आपको पूछा है और आगे आपको बताया है कि जी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 1.8। तो जी की वैल्यू कितनी लेंगे, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब ये डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस, सेम बात है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मतलब रेडियस। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब क्या होगा, रेडियस, क्योंकि हम स्ट्रिंग लेंगे, एक एंड पे बॉल लगा देंगे, एक एंड हमारे हाथ में रहेगा, एंड देन वी विल मेक इट मूव इन वर्टिकल सर्कल्स। तो जितना भी लेंथ होगा वो क्या बन जाएगा, रेडियस। तो यू शुड नो कि यहाँ पे आपको क्या बताया है, L इक्वल टू R इक्वल टू 1.8 मीटर। तो सबसे पहले गिवन डेटा क्या है, पूछा क्या है, ये समझ लेना। अब फर्स्ट थिंग, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। स्पीड सबसे कम कहां पे होता है, टॉप मोस्ट पे। और डू यू रिमेंबर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो कांस्टेंट है ना, ऐसा होगा क्या कि ऑब्जेक्ट ए पे है तो मास बदल गया, बी पे है तो मास बदल गया, मास तो चेंज होता नहीं है। तो चेंज क्या हो रहा है, स्पीड। तो जहां पे स्पीड मिनिमम वहां पे काइनेटिक एनर्जी भी मिनिमम। तो मिनिमम कहां पे होगा, टॉप पे, राइट। तो सॉल्व करते वक्त ये हमेशा ध्यान रखना, when you solve this you need to know, number 1, for minimum kinetic energy, for Ke minimum, so Ke minimum is at top, so kinetic energy is minimum, is kinetic energy is minimum at the top,
एट द टॉप, मतलब ए पोजीशन पे। नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट, कैसे फाइंड करोगे व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो काइनेटिक एनर्जी अगर चाहिए तो टॉप पे स्पीड की वैल्यू चाहिए जो पता नहीं, लेकिन क्या पता है, सी पे स्पीड कितना वो पता है, तो व्हाट यू नो इज वी सी कितना 8। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हम हाइट कहां से मेजर करते हैं, बी से। तो ग्राउंड किसको मान लेते हैं, बी को, रेफरेंस इज बी। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि सी का हाइट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वाज आर, राइट। तो आपको सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिल सकता है क्योंकि हाइट पता है, आपको काइनेटिक भी मिल सकता है क्योंकि स्पीड पता है, और मास तो दिया ही है ना, मास दिया है ना 20 ग्राम, यस, तो मास भी दिया है, तो यू कैन फाइंड आउट। तो मास भी दिया है 20 ग्राम, 20 ग्राम मतलब कितना किलोग्राम, 10 पावर -3 किलोग्राम, तो 2 इंटू 10 पावर -2 आ जाएगा ये, राइट। तो इफ यू नो दिस मच you can find out what is the total energy at point C, क्योंकि V पता है, H पता है, तो काइनेटिक मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल टोटल मिल जाएगा। लेकिन डू यू रिमेंबर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट ऑल द पॉइंट इज सेम। तो जितना टोटल एनर्जी C पे होगा उतना ही A पे होगा, तो टोटल एनर्जी एट C इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए। ये आएगा आपका हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस एम जी एच सी इक्वल टू हाफ एम वी ए स्क्वायर प्लस एम जी एच ए। गुड। तो अगर ये पता है तो यू कैन सॉल्व। आपको क्या फाइंड करना था, मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब क्या फाइंड करना है, हाफ एम वी ए स्क्वायर। तो मैं इसी को लिख देता हूं, दिस इज काइनेटिक एनर्जी एट ए, क्योंकि फाइंड ये करना है आपको। आपको मास नहीं, मास तो दिया है, वी पूछा है, कि आपको पूछा है कि टॉप पे स्पीड कितना, नहीं, क्या पूछा है, व्हाट इज मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करो, तो देन सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, जस्ट पुट वैल्यूज एंड डन। तो अब हाफ एम, एम कितना था, 2 इंटू 10 पावर -2, 20 इंटू 10 पावर -3 मतलब 2 इंटू 10 पावर -2 होता है। वीसी कितना था, 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस एम, एम वापस से मास, मास कितना है वापस 2 इंटू 10 पावर -2। जी, जी की वैल्यू कितनी लेनी है 10, और एच, व्हाट इज एच, एच इज इक्वल टू आर, क्योंकि पॉइंट सी का हाइट है आर, लेंथ, दैट इज 1.8। तो यहां पे लिखोगे 1.8 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस एम, एम 2 इंटू 10 पावर -2, जी 10, और हाइट ऑफ ए पॉइंट एल प्लस एल 2l, 1.8 प्लस 1.8 3.6, तो 3.6। अब कैंसल और कैंसल, देन इफ यू सी 10 इंटू 1.8 18, 18 2 जा 36। ये पहले आपके पास पहले टर्म में है 64 इंटू 10 पावर -2, ये पहला टर्म आ गया, प्लस 36 इंटू 10 पावर -2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस ये आ गया आपका 36, 10 इंटू 3.6 इज 36 इंटू 2 इज 72 इंटू 10 पावर -2, then what is 64 plus 36, 100। देखो ये 10 पावर -2 कॉमन निकाल लोगे, तो 10 पावर -2 कॉमन आ गया, क्या बचा 64 प्लस 36, ये 10 पावर -2 और ये 10 पावर +2, 100 है ना, ये 10 पावर -2 10 पावर +2 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस 0.72, क्योंकि 72 इंटू 10 पावर -2 इज 0.72। तो यहां से आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट ए, ये कितना है 1,
माइनस ये कितना है 0.72, कितना आया 0.28 जूल। तो मिल गया मिनिमम काइनेटिक एनर्जी 0.28 जूल। तो therefore kinetic energy at A, which is minimum kinetic energy, is equal to 0.28 जूल। देन अब क्या फाइंड करना है मैक्सिमम। मैक्सिमम कहाँ होता है एट द लोएस्ट पॉइंट। तो पार्ट 2 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ये फाइंड करना है आपको। तो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट लोएस्ट पोजीशन, is maximum at position B, lowest position B, right? क्या करेंगे सेम total energy at C is equal to total energy at B, but total energy at C is 1। अभी तो फाइंड किया ना 1। देखो ये लेफ्ट हैंड साइड क्या था, लेफ्ट हैंड साइड क्या था टोटल एनर्जी एट C, टोटल एनर्जी एट C वाज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो हमने क्या किया, हमने वैल्यूज डाल के काइनेटिक फाइंड किया, उसमें पोटेंशियल ऐड किया, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया आपका 1। ये 1 था कि नहीं, दिस वाज 1। तो टोटल एनर्जी इज 1 जूल। तो सीधा सीधा यहां लिख देना इट इज 1 जूल इक्वल टू हाफ mv² फाइंड नहीं करना है, काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट B, राइट। और ये 1 कहां से आया तो लिख दो, सिंस टोटल एनर्जी कहां पे C पॉइंट पे इज 1 जूल। अब हो गया सॉल्व, खत्म, डन। वाई पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B इज 0, क्योंकि हाइट क्या है B पॉइंट का 0, क्योंकि हाइट आप मेजर ही B पॉइंट से कर रहे हो तो 0। तो आप बोलोगे 1 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट B प्लस mgHB, but height at B is 0, therefore 1 equal to kinetic energy at B, which is maximum kinetic energy। यह आ गया आपके पास सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट सॉल्व। क्लियर, ये इजी था। अब तीसरा पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। तो तीसरे पार्ट में क्या फाइंड करना है, थीटा व्हेन टेंशन इक्वल टू mg। तो इसके लिए सबसे पहले यू डू नॉट नो कि एग्जैक्टली कौन से पोजीशन पे टेंशन विल बी इक्वल टू mg। तो हम क्या करेंगे, एक वर्टिकल सर्कल ले लेंगे, देन हमको एंगल कहां से मेजर करना था विथ रिस्पेक्ट टू लोवेस्ट पोजीशन। देन मान लो, इमेजिन समवेयर कोई एक पॉइंट है जिसको मैं नाम देता हूं x। मान लो ये x पॉइंट है, इसको थोड़ा सा ऊपर दिखा देते हैं, लिटिल बिट, लेट मी टेक इट ओवर हियर। तो ये पॉइंट है x, ये पॉइंट है B। इमेजिन ये जो x पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पे टेंशन इक्वल टू mg है और एंगल कितना बना तो थीटा, राइट। तो लेट x be the point at which क्या हो रहा है, at which टेंशन इक्वल टू mg, राइट। देन क्या फाइंड करना था, थीटा। तो थीटा कैसे फाइंड करेंगे पहले सोचना पड़ेगा। वेल बाय द वे, चाहे वो x पे हो, चाहे B पे हो, चाहे A पे हो, चाहे C पे हो, the particle is performing circular motion, तो नेसेसरी फोर्स इज सेंट्रीपिटल। तो पहले फोर्सेस की बात करो। अब यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस है, एक तो है वेट विच इज डाउनवर्ड्स, मतलब यहाँ पे नीचे इट इज mg। दूसरा फोर्स है टेंशन इन द स्ट्रिंग विच इज टुवर्ड्स द सेंटर। मैं इसको ऐसा दिखा देता हूँ फॉर द टाइम बिंग, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ फॉर सम रीजन, बताता हूँ क्या। टेंशन कहाँ था, अंदर की तरफ था, क्योंकि टेंशन हमेशा कहाँ होता है, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। रस्सी को कहाँ पे बांध के रखा, अपने हाथ में रख के ही उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवा रहे हो ना,
इट इज इन योर हैंड, द स्ट्रिंग इज इन योर हैंड, तो टेंशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। लेकिन ये बी पॉइंट का केस याद है आपको, आप बोलते हो टेंशन एट बी माइनस एम जी इक्वल टू एम वी बी स्क्वायर बाई आर, मतलब टुवर्ड्स सेंटर कौन सा फोर्स है वो देखो, अवे कौन सा है वो देखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। टुवर्ड्स सेंटर माइनस अवे फ्रॉम सेंटर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। क्लियर? तो इस केस में भी तो वही है। इस केस में इफ यू सी ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, राइट। तो अगर आपको एंगल्स मिल गए, ये एम जी है तो ये आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, क्योंकि एंगल को लग के हमेशा होता है कॉस, तो साइन कहां जाएगा, फिर साइन यहां पे आएगा, यह आ जाएगा एम जी साइन थीटा, जो हमारे काम का नहीं है इस एग्जाम्पल में, तो हम लिखेंगे नहीं। तो फ्रॉम डायग्राम व्हाट डू यू सी, टेंशन इज टुवर्ड सेंटर, mg cos थीटा इज अवे फ्रॉम सेंटर, तो टेंशन T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, वी कौन सा, x, वी एक्स स्क्वायर बाय आर। x क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां पे है, x पे, जब b पे था तो v भी बोलते हो, a पे था तो va बोलते हो, और x पे तो वी एक्स स्क्वायर, करेक्ट। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन टेंशन क्या होना चाहिए, mg, राइट, बट t इक्वल टू mg, सब्स्टिट्यूट कर दो, तो mg माइनस mg cos थीटा इक्वल टू m वी एक्स स्क्वायर बाई आर। mg कॉमन निकाल लेंगे, mg कॉमन निकाल लिया, 1 माइनस cos थीटा इक्वल टू m वी एक्स स्क्वायर बाई आर। अब प्रॉब्लम ये है, हमें चाहिए था थीटा, राइट, m पता है यस, g पता है यस, m पता है यस, r पता है यस, लेकिन इस इक्वेशन में, एक इक्वेशन में दो अननोन आ गए, एक vx और एक थीटा। अगर vx मिल गया तो थीटा मिल जाएगा, तो अभी पहले vx फाइंड करो, इसको कुछ बोल देते हैं इक्वेशन नंबर, आई डोंट नो, 1 ही बोल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक vx नहीं मिलेगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, m तो गया, m का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट vx, वी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, इसको बोलता हूं इक्वेशन नंबर 1, उसको हटा देते हैं वहां से। देन इफ यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज वी एक्स, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब वी एक्स स्क्वेयर है, लुक लुक, यहां पे भी कहीं तो हमने ये लिखा है, v का स्क्वायर लाना हो तो क्या लाना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो सिमिलरली वापस वही बोलोगे, बट total energy at C is equal to total energy at X. Now total energy at C is 1. This is equal to kinetic energy at C plus potential energy at C, sorry, X. ये लिखना पड़ेगा X, right? So what is kinetic energy at X is half m v x square, और पोटेंशियल कितना mg hx, तो अब कम से कम vx तो आ गया, vx का स्क्वायर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड का तो प्रॉब्लम नहीं है, hx, अगर hx हाइट ऑफ x पॉइंट मिल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हाइट ऑफ x पॉइंट पहले फाइंड कर लो, कैसे फाइंड करोगे, सिंपल है, ये भी मैंने पहले बताया था आपको, मैं वापस बता रहा हूं, यू ऑलवेज नीड टू रिमेंबर दिस थिंग, ये है आपका रेफरेंस लेवल। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो टोटल है ये है लेंथ या फिर रेडियस, और यहां से यहां तक ये भी है लेंथ या फिर रेडियस। देन इफ यू रिमेंबर, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दोगे यहां तक, और ये जो पार्ट आएगा, डू यू रिमेंबर एल कॉस थीटा, जिनको नहीं समझा कोई प्रॉब्लम नहीं, वाई मान लो, वाई मान लो, क्या फर्क पड़ता है। देन वंस यू टेक वाई, you will say cos theta, by definition adjacent side, थीटा का एडजेसेंट साइड कौन सा है, पीछे ध्यान दो, यहाँ पे
लास्ट। ओके, बाकी के लोग यहां ध्यान दो। cos थीटा इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो y बाय l। cos theta is adjacent side upon hypotenuse, adjacent side is y, hypotenuse is l, तो cos theta is y by l। तो y क्या मिल जाएगा यहां से, l cos theta। ये हमने पहले भी किया था, मैंने आपको ये भी बताया था, ये अगर l cos theta है तो ये भी क्या है, l cos theta, मतलब दिस इज ऑल्सो l cos theta। एंड दिस मच, ये दिस इज हाइट, किसका हाइट, एक्स पॉइंट का हाइट, कहां से, ग्राउंड से। लेकिन यहां से यहां तक का डिस्टेंस इज एल, वेरी गुड, तो दिस मच डिस्टेंस इज एल। तो आप बोल सकते हो बट एल इज इक्वल टू एल कॉस थीटा प्लस एच एक्स, तो एच एक्स इज एल माइनस एल कॉस थीटा, एल निकाल लो कॉमन, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहां पे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3 you will get, put it there, 1 equal to half m vx square plus m g hx, लेकिन hx क्या है, l, 1 माइनस cos of theta, राइट। देन इक्वेशन नंबर 1 में था vx स्क्वायर, एक काम और भी कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू फ्रॉम हियर इज, ये rg को शिफ्ट कर दो, इधर लिख दो। इस ऐसा करने से क्या होगा समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, राइट। तो यू विल हैव vx स्क्वायर बाय rg इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा, और ये जो इक्वेशन हमारे पास आया है यहां से भी 1 माइनस cos थीटा मिल सकता है, तो उसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लो। तो व्हाट यू विल गेट इज, यहां से 1 माइनस हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहां से मिल जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस हाफ एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एम जी, इक्वेशन नंबर लेटर से 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 दोनों का एक साइड क्या है, 1 माइनस कॉस थीटा, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 4 हमें क्या फाइंड करना था, क्या फाइंड करना है, थीटा, राइट। तो क्या करेंगे, कॉम्प्लिकेशंस कम करने हैं, इससे भी आएगा ही, लेकिन सिंप्लीफाई करना है अगर, तो एक दो स्टेप हम कम कर सकते हैं। कैसे, लुक, यहाँ पे वी एक्स स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे ये जो मैंने लिखा था ये था आर जी 1 माइनस कॉस थीटा, इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया तो होगा, वी एक्स स्क्वायर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो वहां पे, डन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 4, तो सब्स्टिट्यूट इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 4 व्हाट यू विल हैव इज, सब्स्टिट्यूट करना है सिर्फ, 1 इक्वल टू हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, व्हाट इज वी एक्स स्क्वायर, आर जी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, यहां पे क्या है, प्लस एम जी एल, बट डू यू रिमेंबर एल और आर तो सेम है, एल और आर क्या था, सेम था, तो एल की जगह पे क्या लिखा मैंने, आर, 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, हाफ और 1, ये हाफ है ना, हाफ है ना, यहाँ पे छोड़ो मैं ऐसा बताता हूं ज्यादा आसानी समझेगा, एम आर जी 1 माइनस कॉस थीटा निकाल लिया कॉमन, ये कॉमन आ गया तो क्या बचा, हाफ, यहाँ क्या बचा 1, तो 1 और हाफ कितना होता है, 3/2, तो 1 इक्वल टू 3/2 एम आर जी 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, गुड गुड। हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा, तो यहां से क्या लिखोगे, 2/3 है ना, क्योंकि ये वहां गया,
तो 2/3, देन 2/3 अपॉन mrg इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। आपको क्या चाहिए? कॉस थीटा, शिफ्ट कर दो कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2/3 mrg। 1 माइनस 2/3, m की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 10 पावर माइनस 2। r की वैल्यू कितनी है? 1.8। g की वैल्यू कितनी है? कैंसल एंड कैंसल। देन ये आ गया आपका 18, ये आ गया 54। तो 1 माइनस ये जाएगा 10 पर माइनस हो जाएगा ऊपर, 100/54 माइनस 100 कितना? 54 माइनस 100 कितना? 46 विथ अ नेगेटिव साइन अपॉन 54, राइट। अब कम से कम ये पता होना चाहिए, ये तो सॉल्व कर सकते हो, यू कैन जस्ट फर्दर सिंप्लीफाई, लेकिन इतना पता होना चाहिए आपको, कॉस की वैल्यू नेगेटिव कौन से एंगल के लिए होती है? ऑब्ट्यूज के लिए। 0 से लेके 90 तक कॉस की वैल्यू आती है पॉजिटिव, 90 से 180 आती है नेगेटिव। तो हमारा आंसर जो कुछ भी आएगा वो आएगा 90 से 180 के बीच में। और अगर आप चेक करोगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 148 डिग्रीज एंड 25 मिनट्स। तो मिल गया एंगल, राइट। वेट, हो गया, थोड़ा सा और इंतजार। ऐसा है, हम एंगल कहां से मेजर कर रहे थे? वाई एक्सिस से। वेरी गुड। इसका मतलब यहां से मेजर कर रहे हैं, यहां तक आ गया 90, यहां तक होता है 180, तो इन रियलिटी 148 मतलब यहां पे आएगा, तो समवेयर ओवर हियर। क्लियर, राइट, गुड। तो पहले दो पार्ट में कोई प्रॉब्लम है नहीं, तीसरे पार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये प्रॉब्लम घर पे जाके वापस एक बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको। गुड। तो डन विद दिस क्वेश्चन।